Hello everyone, I'm your host Abhishek Singh and I welcome you all in the new episode of Code Cover. So in this episode we have a lot of updates regarding CSS, Node.js and much more. So just like usually we have our guest as Nahar Singh who will be explaining all the code and I will be telling you the updates. If you are someone working in IT who wants to transition or build a career in data analysis or data engineering, then I have something for you. You see, AI is taking over jobs, yes, in data and tech as well. And in fact, in a recent interview, Mr. Kunal Shah said, in the next few years, 90% of the job will be taken over by AI. And I feel the only way to make sure you're not one of them is to use AI in your job, especially in data. And what if I tell you, you can learn to future-proof yourself by learning skills like data analysis, data engineering, for completely free. You should check out Growth School's 3 hours workshop on data analysis and data engineering that can help you to get a job or switch from any IT profession to a high paying job. And the crazy part is both of the workshop are paid, but the first 100 people who register from the link below can attend this for free. Right now, both of these are high demand job roles that every company is hiring. With these workshops, any IT or non-IT professional can get started to get a 6-figure salary job. The most valuable part is you get to learn from the mentors working in your dream company, like Anurag working at Cred, Riya working at Google, and Sanket working at Microsoft. While there are so many courses out there, but what caught my attention is that Growth School not only teaches about data, but has integrated AI and ChatGPT in these courses. So you can learn how to use new technologies and do your job better. Doing this will truly make your job ready and future-proof. I strongly recommend you to start learning. The best part is Growth School has already taught more than 8 lakh people, and many of them have got jobs and internship in companies like Amazon, Paytm, Myntra, etc. So if you're a working professional, fresher, or even a student looking to get salary hikes, promotion, or better opportunity, you must register using the link below. Remember, this is only free for first 100 people who join. So hurry and register now. So here we have our first update, which is from Node.js. So in Node.js 20, we have a lot of new features in which some of them are experimental, just like the Node.js permission. So currently it is in beta mode and now we'll be explaining all that. First of all, thank you Abhishek for inviting me. और बात कर रहा हूँ इस फीचर की, तो ये अभी एक्सपेरिमेंटल फीचर है. एक्सपेरिमेंटल का मतलब अभी ये सिर्फ Node.js 20 में अवेलेबल है, वो भी हमें एक्सपेरिमेंटल फ्लैग लगाना पड़ेगा. इसका मतलब अभी कंफर्म नहीं है फ्यूचर में अपडेट रहेगा या नहीं रहेगा. डिपेंड करता है कम्युनिटी पे कैसा रिस्पॉन्ड किया. अगर लोगों ने बोला घटिया है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा. लोगों ने बोला अच्छा है इसको रहने दो, तो आगे के Node.js वर्जन में ये स्टेबल रहेगा. सो दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम Deno में और Node.js में कंपेरिजन चलता रहता है कि Node.js वो सब कुछ अलाउ कर देता है, राइट. कुछ भी चाहिए, OS, नेटवर्किंग, फाइल सिस्टम, सब कुछ ऐसे ही बस डायरेक्ट यूज़ करो. Deno में ऐसा नहीं है, उसमें परमिशन अलाउ करनी पड़ती हैं. सो ये फीचर वही है, हमें स्पेसिफिकली अलाउ करना पड़ेगा. जैसे कि ये देखो, मैंने एक बेसिक Node.js ऐप बना रखी है, इसमें कुछ सैम्पल कोड है. इस कोड से बेसिकली फाइल रीड हो रही है जो डेटा के अंदर पड़ी है, सीक्रेट, ठीक है. इसमें कुछ सीक्रेट लिखा हुआ है जो कि रीड होने के बाद ही देख सकते हो तुम क्या सीक्रेट है. सो इस फाइल को रीड करना है. अगर हम Node.js से डायरेक्ट चलाएं तो एक तो मैंडेटरी चीज़ कि Node.js 20 इंस्टॉल होना चाहिए इस चीज़ को वर्क करने के लिए, ठीक है. तो कैसे होगा, सिंपली Node.js की वेबसाइट पर जाओगे तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना जो कि Node.js 20 है. तो अगर मैं Node.js का वर्जन दिखाऊँ, इंस्टॉल वर्जन, सो यू विल सी 20.6.1, राइट, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है. एंड सेम गोज npm का देखोगे तो ठीक है 10.1. अगर मैं नोड के साथ ये फाइल रीड करूँ ऐप, तो यू विल सी वर्ड लिखा आ गया और हमने सीक्रेट रीड कर लिया. कंसोल लॉक करा हुआ है. सीक्रेट देखो क्या था, मैंने कहा था एक सीक्रेट है बहुत खतरनाक. मजाक कर रहा था मैं, कोई सीक्रेट नहीं, मजाक कर रही लिखा है. फाइल में चेक कर रहा है तो ये लिखा मजाक कर रहा था, राइट. और उसके बाद वर्ड भी आ गया, तो ये हमारा काम कर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब एक्सपेरिमेंटल के साथ क्या हुआ, हम ऐसे सब कुछ अलाउ नहीं करेंगे. तुमने देखा नोड में अलाउ था सब कुछ, राइट, रीड कर पा फाइल को. सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्लैग लगाना पड़ेगा डैश एक्सपेरिमेंटल डैश परमिशन. और इसके बाद जो Node.js 20 के परमिशन वाले फीचर्स हैं वो काम करेंगे. तो अब मैं अगर ये ऐप स्टार्ट करूँ तो नहीं होगी, इसको परमिशन देनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं. तो अगर ऐसे स्टार्ट कर दूँ तो यू विल सी, ये देखो एक्सेस डिनाइड आ गया. एक्सेस टू दिस API हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड, एक्सेस डिनाइड, परमिशन फाइल सिस्टम रीड. सो परमिशन देनी पड़ेगी. और ये क्यों किया है, वैसे हमने ये फीचर ऐड क्यों किया है, क्योंकि परमिशन सारी अलाउ होने से नुकसान है. अगर कोई स्क्रिप्ट ऐड कर दे या कोई रन कर दे तो लिटरली हम फाइल रीड करके कोई सी फाइल डिलीट कर सकते हैं, तो वो रिस्की चीज़ है ना. इसके लिए ये फीचर्स ऐड हुए हैं. तो परमिशन कैसे देनी है, अब ऐसे ऐड करने के बाद
हमें रीड करना है तो हमें सिंपली लिखना है डैश अलाउ डैश डैश अलाउ। तो हमें लिखना सिंपली डैश डैश अलाउ और उसके बाद परमिशन बतानी है कौन से अलाउ करनी है, जो कि है इस केस में रीड, FS रीड, ठीक है। और इसके बाद बताना है कौन सी डायरेक्टरी रीड इस अलाउ करनी है रीड करने के लिए। तो ऐसे कर देंगे ऑल, मतलब ये पूरा फोल्डर, ठीक है। एंटर किया, फिर से चल गया, ठीक है। सेम गोज FS राइट के साथ। तो अगर मैं इसको कमेंट करूँ और नीचे वाला अनकमेंट, ये वर्किंग कंसोल लॉक करेगा और एक temp.js फाइल बनाएगा यहीं पे जिसमें लिखा हुआ। तो मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सो एक फाइल क्रिएट होगी temp.js, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ और कंसोल में वर्किंग। तो इसको चेक करना है अगर नोड app.js काम कर गया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट काम करता है Node.js में ऐसे बिना परमिशन के। डिलीट करता हूँ इसलिए मैं। अब एक्सपेरिमेंट फ्लैग लगा के करें अगर एक्सपेरिमेंटल परमिशन ऐप, देन अगेन एरर आ जाएगा एक्सेस डिनाइड, ठीक है। तो हमें इसमें भी ऐसे लिखना हुआ डैश डैश अलाउ FS डैश रीड की बजाय राइट इज इक्वल टू ऑल। स्टार ला दिया, मतलब सारे ये वाला फोल्डर पूरा एक्सेसिबल है। एंटर करूँगा, यूसी अब भी ये आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट तो मैं तब करूँगा जब पहले वाली फाइल रीड होगी, अभी ये फाइल ही रीड नहीं हो पा रही। सो हमें पास करना पड़ेगा इससे पहले डैश डैश अलाउ FS रीड, ठीक है। ये फोल्डर रीड हो पाएगा, उसके बाद हम राइट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों परमिशन देनी है। एंटर करूँगा, यू विल सी वर्किंग आ गया, टेम्प वाली फाइल आ गई, ठीक है। तो इसमें करने से स्टार्ट तो हो जाता है, बट हमें देना हो बिल्कुल स्पेसिफिक बात, क्योंकि यू कैन सी हमने ऑल फाइल्स कर दिया अवेलेबल। सो रीड करनी है हमें फाइल, दोनों की एग्जैक्ट देनी है। तो रीड के लिए क्या होगा? रीड के लिए हमें ऐप वाली फाइल रीड करनी है, राइट, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है। सो हम पास करेंगे डी, जो भी ये बात है देखो क्या है। इनफैक्ट अगर मैं इसको हटा के PWD टाइप करूँ, ये वाला पाथ जो है यही देना है। सो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसी वाली कमेंट में पाथ हमें देना ये स्लैश, इसके अंदर app.js फाइल। सो रीड करने के लिए इस फाइल की परमिशन है और राइट करने के लिए ये फोल्डर अलाउ करना है। सो उसके लिए मैं टाइप करूँगा तो ये फोल्डर अलाउ होगा, ठीक है। एंटर करूँगा, यूसी वर्किंग आया और फिर से मैं टाइप कर पाया। तो ये है परमिशंस Node.js के, जो कि Dino से इंस्पायर्ड है। वेल, दैट्स अ फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन आवर। Now we have another update again from Node.js. Now we have a built-in Node.js testing module. So we don't need any third-party library. We can use a pre-built module from Node.js for all the testing purposes. And I would request Nahar to explain all of that. Yes, पहले क्या होता था कि हमें टेस्टिंग के लिए अलग से पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ते थे, जैसे जेस्ट हो गया, मोका और भी बहुत सारे हैं। बट अभी यू कैन सी Node.js में से मैंने डायरेक्टली टेस्ट फंक्शन को इंपोर्ट किया हुआ है, राइट। तो ये प्री बिल्ड मॉड्यूल है टेस्ट Node.js के अंदर, और एसर्ट भी देख रहे हो ऊपर। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि ये Node.js 20 के ऊपर का ये वर्जन होना चाहिए। सो हाउ टू यूज़ दिस? सिंपली हमें टेस्ट को इंपोर्ट करना एंड यू कैन सी टेस्ट को कॉल करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें पास करनी है नेम, जो भी नाम देना चाहो टेस्ट का। अभी के केस आने दिया test1, उसके बाद में फंक्शन जो रन हुआ, ठीक है, टेस्ट फंक्शन। तो एसर्ट के अंदर ये जैसे एक एग्जांपल है, एसर्ट में एक मेथड है सेट इक्वल, इसमें हमें वैल्यू पास करनी है कि एक्चुअल वैल्यू और जो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और ये दोनों अगर मैच हो गई देन वेल एंड गुड, टेस्ट पास। अगर नहीं हुई तो यहाँ पे जो भी हम कस्टम मैसेज देंगे वो प्रिंट होगा, जैसा कि अभी के केस में ये प्रिंट होगा। एंड नीचे देख सकते हो test2 लिखा है, इसमें एक्चुअल वैल्यू में ये फंक्शन को कॉल किया हुआ है और एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इसमें मैंने कोई कस्टम मैसेज पास नहीं किया, तो एक डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है, वो फेल होने पे वो ही शो होगा। अब ये फंक्शन क्या करता है दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली एवरेज रिटर्न करता है एरे का, ठीक है। एरे पास करनी है, उसका एवरेज रिटर्न कर देगा। इसमें हमने एरे पास करी है, सो इसका एवरेज आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू में, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पास की। तो देखते हैं टेस्ट क्या हुआ। हाउ टू यूज़ दिस? टर्मिनल चलाया है एंड सिंपली हमें नोड से इस फाइल को चलाना है टेस्टिंग के अंदर, test.mjs। नोटिस एक्सटेंशन है mjs ना कि js। वेल यू कैन राइट js, cjs, mjs, सभी वर्क करेंगे, बस शर्त है package.json के अंदर टाइप मॉड्यूल होना चाहिए। नाउ इफ़ आई प्रेस एंटर, यू सी test1 फेल हो गया, ठीक है, test1 फेल और मैसेज यही आ गया, दीज वैल्यू आर नॉट इक्वल, जो भी हमने मैसेज किया था। और ये भी देख सकते कितने सेकंड के लिए चला था, 2.2764 ms के लिए।
और उसके बाद टेस्ट 2 पास हो गया जो कि चला था 0.32 ms के लिए, तो काफ़ी फास्ट था ये वाला। तो इस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड दीज आर जस्ट फ्यू फीचर्स ऑफ Node.js 20 and one of them is we don't need to install additional .env package. Now Node.js by default can read .env files. So after Node.js we have an amazing update. This is regarding Bun 1.0. So you can say this is a replacement for Node.js. It has all the things. It is basically a runtime environment which is quite faster than Node.js, and unlike Node.js it uses Safari browser's JavaScript engine, which is a lot faster than Chrome's V8 engine. And not only that, this is like a complete package, and now I will be explaining all of that. Yes, Bun 1.0 is so amazing. It has so many features, but the only issue is कि अभी ये Windows के लिए fully available नहीं है. So if you are using Linux or Mac, then definitely you can install this using this command. Now इसे इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नोड की npx की .env की, क्योंकि बन के साथ ये सब ऑलरेडी है। npx और नोड की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि बन उसको रिप्लेस करेगा, और नोड env की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बन env फाइल को रीड कर सकता है, और ना ही नोड मोड की ज़रूरत है। सो लिटरली इसने सारे एडिशनल डिपेंडेंसी इसको एक तरह से ख़त्म ही कर दिया है। वेब सॉकेट के लिए भी ज़रूरत नहीं है। एंड बेस्ट बात, ये मेन रीज़न क्या फास्ट होने का इसका, Node.js से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। क्यों? उसका मेन रीज़न है स्पेशली इन द केस ऑफ TS फाइल। सो यू कैन से बाय डिफ़ॉल्ट ये TS फाइल को रीड कर सकता है। इसका मतलब Node.js के साथ क्या होता था, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल होकर जावास्क्रिप्ट बनती थी, फिर जावास्क्रिप्ट रन होती थी। इसमें ऐसा नहीं है, डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट रन होती है, और टेस्टिंग लाइब्रेरीज की भी जरूरत नहीं है। एंड यू कैन लिटरली सी स्पीड कंपैरिजन कितना ज़्यादा है, राइट, 4 टाइम फास्टर दैन Node.js। एंड एक और अमेजिंग चीज़, जब भी हम Node.js की एप्लीकेशन बनाते हैं तो या तो हम CommonJS मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं या फिर ES6 मॉड्यूल। इसमें हम एक साथ दोनों यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट भी और कॉन्स इक्वल टू रिक्वायर्ड भी, एक साथ दोनों तरीके से काम करता है। ना अनदर फीचर जो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छा लगा, हॉट रीलोडिंग। इसका क्या मतलब है, देखो जब Node.js से हम कोई भी ऐप अपनी स्टार्ट करते हैं तो कोड में चेंजेस करने पे वो रीस्टार्ट कर देता है, लेकिन उससे सर्वर रीस्टार्ट होता है। इसमें लिखा है हार्ड रीस्टार्ट, है ना। बन के साथ ऐसा नहीं है, हॉट रीलोड होता है। मतलब जो भी हम चेंजेस करेंगे, सेव करेंगे, तो चाहे वो वेब सॉकेट हो या फिर HTTP का सर्वर, वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, है ना। बात करते हैं APIs की, तो बर्न में काफ़ी अमेजिंग API हैं, जैसे कि फाइल को रीड करने के लिए बर्न नोट फाइल API, जो कि लेजी लोड करके फाइल को रीड करता है। सो यहाँ लिखा हुआ 10 टाइम फास्टर दैन Node.js। आई विश कि ये सब मैं करके दिखा पाता, बट सिंस मेरा OS विंडोज़ है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। एंड रीड की तरह यहाँ पे हमारे पास राइट मेथड है, बर्न डॉट राइट। यू नो, जब हम नोड से सर्वर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉयलरप्लेट कोड लिखना पड़ता है, इसलिए हमें एक्सप्रेस यूज़ करना पड़ता है ताकि शॉर्ट कोड में हो जाए सर्वर स्टार्ट। बर्न डॉट सर्वर एक फंक्शन है जिससे हम डायरेक्टली एक HTTP का सर्वर बना सकते हैं। एंड नॉट ऑल दैट, इसमें बिल्ट इन डेटाबेस भी है, बिल्ट इन सपोर्ट फॉर SQLite। तो उसमें से डेटाबेस लो, डायरेक्टली एक डेटाबेस क्रिएट कर दो। तो यू सी कहाँ जाता जा रहा है। इसके अलावा हैश करना पासवर्ड, उसके लिए हम हैश कर सकते हैं, bcrypt की ज़रूरत ख़त्म। एंड लास्टली बर्न का जो पैकेज मैनेजर है, उस हम पैकेट को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव, अपडेट, बेसिकली जो सारी चीज़ें होती हैं। और पैकेज मैनेजर की स्पीड को अगर हम टेस्ट करते हैं तो NPM जो पॉपुलर है सबसे ज़्यादा, बर्न से वो 29 टाइम्स स्लोअर है, 29 टाइम्स स्लोअर। मतलब समझ लो कितना फास्ट है बर्न। ये तो कुछ चंद फीचर्स हैं बर्न 1.0 जो लेके आता है। आई एम रियली एक्साइटेड कि विंडोज़ में कब लॉन्च होगा, और नोड के अलावा इसको हम यूज़ कर पाएंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू सम बेसिक्स। HTML. So HTML has a new feature which is pop over API. Just with the help of one keyword we can do a lot now, and now we will be explaining that too. Another feature जो कि HTML में बहुत ही अच्छा आया है, ये देखो मैंने एक बटन बना रखा है रिवील, और एक डिव जिस पे लिखा सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है, कोई सीक्रेट पासवर्ड है, और इसमें ID दे रखी है कंटेंट, बटन में ID दे रखी है BTN। ये देखो बटन दिख रहा है, बट कंटेंट तुम नहीं देख सकते। मैंने CSS में जाके डिस्प्ले कर दी नन, और पोजीशन सेंटर कर दी, उसकी बॉर्डर दे दिया, पैडिंग दे दी। अब मैंने स्क्रिप्ट टैग में क्या करा हुआ है, इन दोनों को सेलेक्ट किया है और क्या दिया, बटन पर क्लिक देते ही इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, मतलब इसकी डिस्प्ले चेंज होनी है बस, ठीक है। सो इफ़ आई क्लिक हियर यू कैन सी सेंटर में आ चुका है, ठीक है, करेक्ट, वर्क कर रहा है। बट उसी इतनी छोटी चीज़ के लिए मुझे 4 लाइन JS की लिखनी पड़ गई, 10 लाइन CSS की, राइट। एंड इवन एक प्रॉब्लम अभी भी इसमें कि सिर्फ ऑन क्लिक पे एक बार ही काम करता है, क्योंकि हाइड कैसे करूँगा, मैंने सिर्फ ये देखा ना डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। सो ये देखो मैंने एक क्लास बनाई है एक्टिव, ठीक है, तो मैं कंडीशन ला दूंगा कि कंटेंट में, देखो मैंने एक क्लास बनाई है एक्टिव, और मैंने कंडीशन ला दी कि
कंटेंट जैसे बटन पे भी क्लिक करें और कंटेंट में पहले से एक्टिव हो, उस केस में एक्टिव रिमूव कर दो, अदरवाइज ऐड कर दो। सो अगर हम चेक करें, इस पर क्लिक होते शो हो रहा है, इस पर क्लिक होते हट रहा है, ठीक है, टॉगल कर पा रहे हैं। बट यूसी JS कितनी सारी आ गई, CSS कितनी सारी आ गई। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, HTML का नया फीचर, इसको मैं एज इट इज सेव करूँगा, इसको एज इट इज सेव करूँगा, तो कमेंट कर दिया, अभी एडजस्ट नहीं करते, तो चेक करें तो लिटरली ऐसे दिख रहा है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली एड 2 थिंग्स। सबसे पहले तो जिसे भी हमें हाइड करना, मतलब अभी देख रहे हो सीक्रेट पासवर्ड वाला सेंटर में आ रहा था, उसे एलिमेंट को उस एलिमेंट के अंदर में देना पॉप ओवर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी देनी है। अब ये पॉप ओवर एलिमेंट बन चुका है, अब इसे शो कैसे करना हो, बटन में देना हमें पॉप ओवर टारगेट, इसमें हमें आईडी पास करनी है पॉप ओवर एलिमेंट की, इस वाले एलिमेंट की। तो ये आईडी कंटेंट पास किया, जस्ट लाइक दैट, सिर्फ 2 लाइन, लिटरली HTML CSS ब्लैंक किया। नाउ यू विल सी मैजिक, क्लिक करूँगा, जस्ट लाइक दैट, टॉगल भी खुद ब खुद हो रहा है। तो 2 लाइन से कितनी सारी लाइन बच गई हमारी, क्या कमाल का एलिमेंट है, राइट। एंड इफ़ यू वांट कि नहीं ये बॉर्डर के आगे नहीं चाहिए, वैसे पहले भी थे, बट अगर नहीं चाहिए देन सिंपली यू कैन डू कंटेंट, मतलब उस स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसका बॉर्डर नाम कर सकते हो एंड सेव, जस्ट लाइक दैट, बॉर्डर चला गया। बाकी मतलब नॉर्मल CSS प्रॉपर्टीज तो दे ही सकते हो। तो दैट्स माई पॉइंट, इतनी सारी CSS और JS बच गई सिर्फ 2 लाइन लिखने से, राइट। जिसे भी पॉप ओवर बनाना है उसमें पॉप ओवर दो, और उसके बाद किसी भी बटन में पॉप ओवर टारगेट और उस एलिमेंट की ID, जस्ट लाइक दैट इज अमेजिंग। एंड दिस टाइम फॉर सम CSS अपडेट। सो नाउ वी हैव स्कोप इन CSS. You all know how important scope is, right? From JavaScript and all. But imagine if we can use the same scope in CSS. That would be amazing. However, this is currently experimental and not supported in all browsers except for the latest version of Chrome. So now I will explain how scope works. देखो scoping क्या मस्त चीज़ है। ये देखो अभी बॉडी में एक div है जिसके अंदर एक p टैग है और कुछ डेटा लिखा है इसमें, और div के बाहर एक p टैग है। तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ p टैग को डायरेक्टली, तो ऑब्वियसली सी बात है दोनों पे अप्लाई होनी चाहिए प्रॉपर्टी। यूसी कलर दोनों का चेंज हो चुका है। अब मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे जितने भी p टैग हैं सबका कलर मुझे ठीक है यही चाहिए। इनफैक्ट आगे और बनाऊँगा, सबका ही चाहिए, बट जो इस div के अंदर है उस p टैग का मुझे कलर कुछ और चाहिए, फर्स्ट वन, और एक और है सेकेंड वन, एक सेकेंड वन यहाँ पे इस साइड टैग लगाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद अगर इसमें वैसे मैं जो भी स्टाइलिंग लूँगा, जैसे कि मैं करता हूँ रेड, इस वजह से मैं कोई सेलेक्टर भी सेलेक्ट करता हूँ जैसे p टैग, उसके बाद करता हूँ उसका पहले रेड या रिबैका पर्पल, तो वो अप्लाई हो जाएगा, नो बिग डील। बट स्कोपिंग से क्या हुआ है, इस सेलेक्ट को मैं डायरेक्टली लिखने के बजाय लिखूँगा @scope और उसके अंदर पेस्ट करूँगा। जैसे हम देते हैं मीडिया क्वेरी का @ होता है, उसके अंदर सारी स्टाइलिंग देते हैं, सेम ऐसा हमने स्कोप दिया है उसके अंदर ये स्टाइलिंग। इससे क्या होगा, स्कोप जिसके अंदर भी दिया है हमने उसका पेरेंट एलिमेंट, मतलब कि इस डिव के अंदर ये अप्लाई हो रही है सिर्फ ये प्रॉपर्टी जो हम स्कोप में दे रहे हैं। हमने स्टाइल पास किया उसके अंदर स्कोप, और अब ये जो स्कोप है इसका डिफ़ॉल्ट स्कोप इसका पेरेंट एलिमेंट, मतलब ये वाला है, राइट। बट थिंग इज़ मैं अभी ब्राउज़र में नहीं दिखा सकता बिकॉज आई एम यूजिंग एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, एंड ये फीचर अभी सिर्फ स्पेसिफिकली अवेलेबल है क्रोम में, तो इट इज़ रियली सैड, मैं दिखा नहीं सकता, लेटेस्ट क्रोम में अवेलेबल है। एंड इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वैसे अगर इस स्कोप को कट करते हैं, अगर यहाँ नहीं देना, सो व्हाट वी कैन डू, CSS में ही जाके ऐसे रखेंगे और यहाँ पास कर देंगे जो भी इसका स्कोप होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसमें क्लास नेम देता हूँ, मान लो कंटेनर, सो आई कैन स्पेसिफाई डॉट कंटेनर, और अब ये पूरा स्कोप सिर्फ इसी डिव के लिए है, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर एक और डिव है, डिव डॉट नै, ठीक है, इसके अंदर p टैग है, इसके अंदर p टैग है, कुछ ऐसे लिख के, ठीक है, साइड लिख के। अब सिंस कंटेनर के पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, कंटेनर स्कोप है, उसके अंदर जितने भी p टैग है सबका ये बना जाना चाहिए कलर। सो अब क्या होगा, कंटेनर तो ये है, तो इसके अंदर जितने भी p टैग है सबका हो जाना चाहिए, तो इसके अंदर ही है ना ये भी। तो अगर मुझे सिर्फ इसको एक्सक्लूड करना है, मैं चाहता हूँ कंटेनर के अंदर अप्लाई हो प्रॉपर्टी, लेकिन नए वाले डिव के अंदर अप्लाई नहीं हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पास वो भी कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ टू डॉट नै। सो इससे क्या होगा, इससे कंटेनर के अंदर अप्लाई होगी प्रॉपर्टीज़, राइट, बट नै के अंदर नहीं होगी।
सो ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे स्कोप. होपफुली ये बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाए सारे ब्राउज़र के लिए, तो मज़ा ये रहा है. वेल दैट वाज अ प्रीटी अमेजिंग फीचर एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट दैट NAR wasn't able to show us in real time. And after that feature, we have another feature from CSS, which is position fallback. We have already used try catch block with JavaScript so many times, right? But what if I say we can write try block in CSS also? That would be amazing, right? So yeah, this is fallback positioning. We will specify quite few conditions while setting their priority. So browser will try that code with highest priority should work. NAR will explain in detail. एग्जैक्टली अभिषेक, पोजीशन फॉलबैक बहुत ही अमेजिंग फीचर होने वाला है और मैं एक्साइटेड हूँ इसके रिलीज़ होने के लिए. फुल्ली ब्राउज़र सपोर्ट कब मिलेगा इसको पता नहीं, बट इससे होगा क्या, हम जैसे ट्राई कैच ब्लॉक देते हैं वैसे ही हम इसमें ट्राई ब्लॉक दे सकते हैं. मतलब यू सी @ पोजीशन फॉलबैक करके हमने बना लिया और एक नाम हमने क्रिएट कर दिया. जैसे इसके इसमें कंपास किया हुआ क्रिएट, और जैसे CSS में वेरिएबल बना दिया एकदम वैसे लिखना है नाम उसी फॉर्मेट में, मतलब डैश और वेरिएबल का नाम. और इसके अंदर हम ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, मतलब पहला ट्राई है, दूसरा ट्राई है, जितने ट्राई बनाने हो. सो इससे होगा क्या, जिसमें भी हम ये पोजीशन फॉलबैक देंगे उसमें पहले ये प्रॉपर्टीज ट्राई होंगी. अगर ये नहीं हुई तब ये नहीं हुई तब ये, और चारों में से कोई भी नहीं हो पा रही तो लास्ट वाली हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, राइट. सो ऊपर से स्टार्ट होगा, पहले ये करना है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. अगर ये चल पा रहा है तो ये बेस्ट है, अदरवाइज़ ये. एंड नीचे अगर एग्जांपल में चलते हैं तो उन्होंने वीडियो लगा रखी है. ऑफकोर्स मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि क्रोम नहीं चला रहा मैं, बट इसलिए मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ. देखो इस टाइम अगर मैं प्ले करता हूँ तो मेन्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस फोटो के ऊपर. बट अगर ये इस पोजीशन टॉप कर दें तो इस टाइम अगर खोलें तो ऊपर स्क्रीन में टच होगा वो, इसलिए फ़ोटो के ऊपर तो आ नहीं सकता वो, तो अपने आप ही वो नीचे खुलेगा, राइट, क्योंकि ट्राई ब्लॉक ऐड है. अगर राइट में करते हैं तो इस साइड खुलेगा इसके ऊपर थोड़ा, तो भी इमेज के ऊपर ही खुल गया. उसको यूज़ करने के लिए पोजीशन फॉलबैक बनाओ, उसका नाम सेट करो, और जिसके अंदर भी यूज़ करना है वहाँ पे हमें पोजीशन फॉलबैक लिख के उसे पास कर देना है, जस्ट लाइक दैट. सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज एपिसोड. आई एम योर होस्ट अभिषेक सिंह. सी यू नेक्स्ट टाइम.